Good morning, everyone. In today's class, I'm going to introduce a very important concept from calculus as continuity and differentiability. A fundamental idea is already being discussed in grade 11th when the idea of a limit of a function, and then we did talk about the derivative of a function in the form of first principle, followed by certain simple formulas for finding out the derivatives. So the idea is going to be extended now in grade 12. Continuity of a function at a point. Just observe the graph of the function sin x. It's a smooth curve. Similarly, let's consider another function, a piecewise function. You already have learned the method how to graph this. So this can easily be graphed. So whenever x is less than or equal to 1, it's a red color wala graph. Whenever x is greater than 1, it's a blue colored graph. And then we can easily observe that there's a break at x is equal to 1. So we can draw the first graph without lifting the pen, and the second graph cannot be drawn without lifting the pen, right? So the basic idea started from here itself. Suppose f is a real function on a subset of real numbers, and a be a point, any point in the domain of f. We say f is continuous at x is equal to a if limit x to a f of x is equal to f of a. Recall, limit x to a f of x. This is subdivided into two different limits in 11th itself, left hand limit and right hand limit. And the left hand limit got the expression limit h to 0 f of a minus h, and right hand limit has the expression limit h to 0 f of a plus h. And we say limit will exist if these two are equal. But now, if limit exists, left hand and right hand are equal, and if this is also equals the value of the function at that point, then we say our function is continuous at that particular point. So please recall this basic definition because we are going to make use of this again. So the above function sin x is continuous at all the points, but this function is not continuous at 1. This is the point x is equal to 1. So there is a break in the graph of this function at x is equal to 1. Hence, wherever there is a break, at that point the function is not continuous. Or in other words, this is continuous except 1. तो मैं इसको कह सकता हूं कि my function is continuous at real domain, just that 1 के ऊपर continuous नहीं है. Function is continuous at x equal to a if it is defined as at x equal to a. Obviously define होना जरूरी है, and value of the function is equal to the limit of the function that we already have seen. And if it is not continuous, then we say f is discontinuous at a, and a is known as the point of discontinuity. So x equal to 1 in this graph is our point of discontinuity. Again, just quick check, f of a must be defined, limit must exist,
left hand and right hand limit must be equal. That means and limit must equal to the value of the function. तो दिस इज द क्रस्ट ऑफ द स्टोरी. सब कुछ जो मैंने बताया है ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां समझना. Based on this, few questions from NCERT exercise 5.1. Prove that this function is continuous at x equal to 0. Later we will learn that this is a polynomial function, hence it is continuous. Point कुछ भी दिया हो, it hardly matters. So that will come as a result for us very soon. बट यहां भी आपको चलो अगर प्रॉपर प्रूफ करके दिखाना है तो 0 के ऊपर वैल्यू आपने देख लिया फंक्शन का -3. अब आपने इसकी लिमिट निकाली. व्हेन यू रिप्लेस x बाय 0 -3 आ गया. तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. रिमेंबर, if by putting x equal to 0 I am getting a finite value, in this case there is no need for left hand limit and right hand limit. आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं. तो ये लिमिट का एक्सप्रेशन बनेगा और वो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करे x की जगह 0 एंड अ फाइनाइट आंसर इज देयर, तो नो नीड फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट इक्वल आ गई टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, hence it is continuous at 0. अब हमने देखा नेक्स्ट है ये -3 के ऊपर. चेक दिस आउट अगेन. Limit of a function is equal to value of the function, hence it is continuous at 3. Oh sorry, -3. Check out this question. सो वैल्यू आपने निकाल लिया, वो 17 आया था. एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया. आप चेक करिए, कई बार ये रियलाइज होगा कि ये तो ऑब्वियस है और वही चीज आपके पास प्रेजेंट करके लिख के दिखाने वाली है. प्रॉब्लम तब आती है जब कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट का, तब हमें इसको लॉजिकली समझना है. अदरवाइज ये तो सिंपल सिचुएशन है एंड यू कैन इजीली विजुअलाइज. I have drawn the graph of this function also. So graphically also one can visualize there is a smoothness in the curve. I can graph this without lifting my pen, चाहे मैं 3 के लेफ्ट से हूं या राइट साइड से. So smoothness of the graph means this is continuous. अब हम बात कर रहे हैं continuity of a function at an interval. पहले हमने एक पॉइंट पे बात करी थी, अब एक इंटरवल में. तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइंड है इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b, सो हैव f कंटिन्यूअस कब होगा? व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन a कॉमा b इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स. ऑब्वियसली देयर इज अ क्लोज ब्रैकेट, सो एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड. तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट all the points in the domain a comma b. Or a real function is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain. So domain may be varying from a question to question. Likewise, this is a reciprocal function 1 by x. So we know the domain of this function is r minus 0. सिर्फ 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं था. इसका मतलब एक्सेप्ट 0 इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है इसका? r -0.
So to check the continuity of the function in a domain, we have to check the continuity at all the points in that domain. तो लॉजिकली देखें तो आपके पास सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो अगर मेरे पास एक पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर दिया है एफ एक्स, whenever x is less than a, it has some different definition. Whenever x is greater than or equal to a, it has some different definition. तो आपको कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी होगी? यू नीड टू चूज एनी रियल नंबर सी जो एक बार ए से लेस देन हो, इक्वल हो और ग्रेटर हो. तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर. तो वी नीड टू इंश्योर कि इन तीनों पे हम चेक कर रहे हैं. Example will make this situation more clear. Check out this. Examine the continuity of this function, and I will not take each and every question of the NCERT. कुछ limited ही questions, and then questions other than NCERT that I will cover altogether. Note carefully, the domain of this function is r minus minus 5. तो whenever a, जो वहां पिछले में c लिख दिया था हार्डली मैटर, तो when a is not equal to -5, वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की a-5. सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये फैक्टराइज कर दिया एंड ऑल दैट. ये तो वैल्यू आ गई. अब हम लिमिट निकालते हैं, और याद करिए ये लिमिट का अगर एक्सप्रेशन आपको दिया है, you already have learned the method how to find the limit. This limit is also equal to a-5. The limit of a function equal to value of the function, hence it is continuous, except at x equal to -5. You can always raise your hand or unmute yourself and ask your doubt. Check out if x is mod of x minus 5. इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, तो हमें पता है mod x minus 5. अगर हम इसे पीस वाइज फंक्शन की तरह लिखें, तो whenever x is greater than or equal to 5, ये सिंपली x minus 5 रहेगा, और whenever x is less than 5, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x minus 5. कैसे हमने ये चीज सोची है? बेसिक डेफिनेशन अगर आपके पास मैं बात करता हूं mod x की, तो mod x होता है x whenever x is greater than or equal to 0, minus x whenever x is less than 0. So this idea is used over here. Just replace x by x minus 5. तो लेट a be any real number. अब आपके पास 3 कंडीशंस हैं, पॉसिबल केसेस. a लेस देन 5 हो सकता है, इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 5. केस 1, लेट a is less than 5. अब लेस देन 5 का मतलब नीचे वाला केस हो गया, ये वाली डेफिनेशन आ गई, विच इज एक्चुअली 5 माइनस एक्स हो गया. तो ये आ गया फंक्शन की वैल्यू. लिमिट निकाल लीजिए, सेम आ रही है. तो फॉर दिस केस, whenever a is less than 5, it is continuous. ऑब्वियसली a इक्वल टू 5 के ऊपर चेक करिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, और अब 5 के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया. इक्वल ही आना था, ये हमें पता ही था. Hence continuous at point a is equal to 5 also.
और थर्ड केस a ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन में हमने देख लिया था ये वाली डेफिनेशन है फंक्शन की, वैल्यू निकाल लिया, और अब लिमिट के लिए सिंपल था, रिपीटेड स्टेप्स ही हैं, और फाइनल कंक्लूजन fx हो गया कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। इनफैक्ट अगर आप मॉड x माइनस 5 की बात करते हैं तो रिकॉल फंक्शन मेरा क्या था, fx क्या था, मॉड x माइनस 5, वर्टेक्स शिफ्ट कर दो 5,0 के ऊपर और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर आप मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ जो मैंने बनाया है, आई कैन मेक इट इन अ वन गो विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, तो हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ग्राफिकली तो सिंगल लाइन में आई कैन जस्टिफाई दिस, algebraically I have to explain all this। तो ये वन मार्कर में मान के चलिए, तो नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट सो मच, तो एक्सप्लेन द क्वेश्चन ग्राफिकली। चेक दिस आउट, fx दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो check this out, what will happen whenever x is less than 2 or greater than 2। when x is greater than 2 or when x is less than 2, f being a polynomial function, ये रिजल्ट थोड़ा सा वैसे बाद में आएगा बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हियर, पॉलिनोमियल है हेंस कंटिन्यूअस। ब्रेक कहाँ हुआ है इस फंक्शन का, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता और चेक करता तो पता चल रहा है इसे देखकर ही, द फंक्शन इज हैविंग सम ब्रेक एट x इक्वल टू 2 ओनली। तो लेट अस चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, और कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्लास 11th में कर चुके हैं, और अब मुझे पता है 2 माइनस h, 2 से लेस, ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी, लिमिट h टू 0 क्या हो जाएगा, ये फंक्शन में x की जगह रख देंगे 2 माइनस h। इवैल्यूएट दिस लिमिट व्हेन h इज 0, 4 प्लस 3 आ गया विच इज 7। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, वो क्या बन जाएगा, लिमिट h टू 0 f ऑफ 2 प्लस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टू 0 2 प्लस h, 2 से ज्यादा, नीचे वाली डेफिनेशन यूज हो गई, तो x की जगह रख दिया 2 प्लस h एंड देन माइनस 3। when I put h is equal to 0, this is equal to 1, since left hand limit is not equal to right hand limit, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस इंप्लाई क्लियरली f is not continuous at this point, और वो क्या था 2। तो आपसे क्या पूछा था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओनली, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2 ओनली। वैसे आप चाहो तो यहां वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल सकते थे, f ऑफ 2, ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी f ऑफ 2 की वैल्यू के लिए, क्योंकि इक्वालिटी वहां दिया है, तो f ऑफ 2 एक्चुअल में 7 के इक्वल था, जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट थी।
बट क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट से मैच नहीं करा, hence discontinuous at that particular point. Any doubt to anyone? एक बार रिकॉल जरूर कर लेना, ये मैक्सिमम चीजें यू विल रियलाइज वी ऑलरेडी हैव डन इन ग्रेड 11th itself. Check out this question. Find all points of discontinuity for this function. Again, check it out whenever x is less than -3. अगर मैं कहूं, it is the sum of two continuous function. ये हम रिजल्ट बाद में लेने वाले हैं वैसे, कि being a this is a modulus function which is continuous everywhere, constant function continuous everywhere, polynomial functions continuous everywhere. बट ये पॉलिनोमियल कब कंटिन्यूस है? बिटवीन -3 to 3. नीचे वाला कब कंटिन्यूस डायरेक्ट पता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3. प्रॉब्लम कहां आई वो अब मेन हमें यहां सोचना है, और प्रॉब्लम आई है एट द ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या हो चुका है? अगर मैं चेक करूं यहां पर -3 लेस देन -3 के ऊपर ये डेफिनेशन अलग है, और when x is greater than -3 definition of the function is changing. So -3 is one of the possible point जहां इशू आ सकता है. ऐसे ही x जब लेस देन 3 था तब अलग डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 3 हुआ डिफरेंट डेफिनेशन. सो फाइनल कंक्लूजन, -3 and 3 are the only पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि डिसकंटिन्यूस होगा ही, बट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. सो क्लियरली x is equal to -3 and x equal to 3 are possible points of discontinuity. सो नॉट श्योर, तो अब हम एक एक पॉइंट पे निकाल के देख लेते हैं. एट x इज इक्वल टू -3, लेट अस स्टार्ट. सो कैसे मेथड करा था हमने जब -3 पे बात करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो होगा लिमिट h to 0 f of a minus h. a अपना कितना हो चुका है? -3. सो लिमिट h to 0 -3 से कम, -3 से कम ऊपर वाली डेफिनेशन, तो रिप्लेस x बाय -3 minus h. इवैल्यूएट दिस लिमिट, सिंपल है. व्हेन h इज 0, -3 का मॉड 3 आ गया, एंड दैट्स आवर लेफ्ट हैंड लिमिट. What is right hand limit? Limit h to 0 f of -3 plus h. Which definition? -3 से ज्यादा यहां पर है, -3 plus h, और h जब भी हम कह रहे हैं दैट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर. तो डेफिनेशन सेकंड वाली यूज हो गई, मतलब x की जगह रख दो -3 plus h, टेक द लिमिट. क्लियरली व्हेन h इज 0, ये आ गया 6. ऑल्सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -3? तो आप इजीली चेक कर सकते हैं. -3 सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन रही थी,
-3। तो आप फंक्शन में डायरेक्टली x की जगह -3 रख दिया, ये आ गया। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो क्लियरली दिस imply f is continuous at -3। तो डाउटफुल था ये वाला पॉइंट, बट यहां तो ये कंटिन्यूअस आ गया। सिमिलरली अब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 3। तो 3 के ऊपर यूजुअल आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ये मैं क्विकली लिख देता हूं। लिमिट h टू 0 f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 3 -h हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3 से कम, यहां है सेकेंड डेफिनेशन। So replace x by 3 minus h, and that would be -6. Get right hand limit. Limit h to 0 f of 3 plus h, 3 से ज्यादा नीचे वाली डेफिनेशन है। लिमिट h to 0, फंक्शन में x की जगह 3 plus h रख दिया, एंड सिंप्लीफाई। सो ये आ गया 20, 18 एंड +2। तो हमें क्लियर तो यहीं से ही हो चुका है, बट ठीक है, मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकाल देता हूं। बट अल्टीमेट आवर कंक्लूजन इज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर वो ही लिमिट इक्वल नहीं है, सो दिस इंप्लाई एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछे थे, तो देयरफॉर ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 3। तो f is discontinuous at x is equal to 3. That is our final conclusion. -16 ये कौन सा बताया भानु, मैंने अभी नोटिस करा चैट बॉक्स पर। सी दिस कंसेप्ट कैन ओनली बी क्लियर जब आपको 11th का लिमिट्स का बेसिक कंसेप्ट आता होगा। वी ऑलरेडी हैव डन ऑल दिस थिंग इन ग्रेड 11th ओनली, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग। और उसमें एक चीज ऐड हुई है कि लिमिट को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वेट चेक करा जा रहा है, बट अदरवाइज यस ओके, बट अदरवाइज लिमिट निकालना क्लास 11th का काम है। डेफिनेशन सिर्फ आपको एक याद रखनी है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ गया, देन आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज रिविजिट ग्रेड 11th डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमने चैप्टर लिमिट्स का जो कंसेप्ट किया हुआ है। प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट इफ आई नाउ कंसिडर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, फिर वो सब ज्यादातर चीजें रिकॉल करें। तो जहां जहां रिक्वायर्ड होगा डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ दैट, बट नॉट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड। ओके, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड। Followed by certain results on continuity of a function. ये सिंपल है, मैं कुछ चीजें बता भी चुका हूं। Every continuous function, every constant function is continuous. Every polynomial function is continuous. Every rational function, बस सिर्फ नीचे जो है ना ये qx 0 नहीं होना चाहिए, quite obvious, this is continuous. In fact, sin x, cos x, tan x in their defined domain, तो sin x और cos x तो हर जगह कंटिन्यूअस है, बट tan x कंटिन्यूअस कहां कहां नहीं होता है? एनीवन? tan x कहां कंटिन्यूअस नहीं होगा?
yes, good, but that is one point you have mentioned. But logically सोचिए तो tan x क्या होता है, sin by cos होता है, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, और cos x जीरो कहाँ होता है, odd multiples of pi by 2. तो my function tan x is continuous except odd multiples of pi by 2. अब ये तभी आप समझ सकते हैं जब आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे इन फंक्शन को हमने डिफाइन किया था एंड हाउ डिड वी ग्राफ देम. चेक आउट दिस क्वेश्चन. Find all the points of discontinuity of this. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Whenever x is greater than equal to 1, whenever x is less than 1, तो क्लियरली कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्लियरली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x is equal to 1, जहां इसका ब्रेक हुआ है. अदरवाइज क्या होगा, whenever x is greater than 1, being a polynomial function, it is continuous. Again, when x is less than 1, being a polynomial function, again it is continuous. तो प्रॉब्लम सिर्फ 1 के ऊपर है जो हो सकती है. तो लेट अस वेरीफाई एट x इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं क्विकली. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h to 0 f of 1 minus h, 1 minus h, 1 से कम, नीचे वाली डेफिनेशन है, तो x की जगह रख दिया 1 minus h. और when you solve this, h को 0 करा, फाइनाइट वैल्यू आ रही है. सिंपल. राइट हैंड लिमिट, आंसर तो आप इसका देखकर वैसे ही बता सकते थे, बट लिखना कैसे है, दैट प्रेजेंटेशन कैरीज मार्क्स. बोर्ड के अंदर सीबीएसई में हर एक स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, सो डू नॉट फॉरगेट दैट. 1 प्लस एच 1 से ज्यादा ऊपर है, तो x की जगह 1 प्लस एच रख दिया, एंड दिस इज ऑल्सो 2. और ऑल्सो व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1. वैल्यू को जब आपको चेक करना है तो इक्वालिटी कहाँ लगी हुई थी, यहां पर. तो फंक्शन में x की जगह 1 रख दिया, ये भी 2 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू आ गए इक्वल. दिस इम्प्लाई f is continuous at 1 also. So therefore no point of discontinuity, that is f is continuous on R. So this is our final conclusion. In fact, if you consider the graph of this function, I've used a software to draw this graph. One can easily note whenever x is greater than or equal to 1, it is a straight line. रेड कलर वाली दिखाई है, 1 से ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी. फॉर x लेस देन 1 क्या हो गया, x लेस देन 1, नोट इट इज अ पैराबोला. बट x लेस देन 1 के ऊपर ही मेरा पैराबोला एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ, तो वो ब्लू कलर से दिखा दिया ग्राफ को. और अब अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर सिंपल मैं पेन से बनाना शुरू करूं, ये आप चेक करिए, ये स्मूथ कर्व आ रहा है. 1 के ऊपर वैल्यू सेम आ गई थी, इसलिए मुझे अपना पेन उठाना नहीं पड़ा, एंड आई कैन ग्राफ इट इन अ 1 गो.
And that's the basic definition of continuity of a function. If I can graph the function without lifting my pen, that is continuous. In examination, the graph is not required. वहां आपको algebraic approach से ही करना है. लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे. Find the relationship between a and b if this function is continuous at 3. बहुत सिंपल है. चेक करिए, 3 के ऊपर इस फंक्शन का ब्रेक हो रहा था. पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका मतलब 3 था. हो सकता था कि ये 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो, बट आपको ऑलरेडी कह दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस है 3 के ऊपर. व्हाट डज दैट मीन्स? सिंस f is continuous at x is equal to 3, this would imply, क्या imply कर देगा? Limit of a function is equal to value of the function. Recall the basic definition. और फिर लिमिट को हमने स्प्लिट करा था राइट एंड लेफ्ट में, माने लिमिट एच टू 0 f of 3 minus h is equal to limit h to 0 f of 3 plus h, and this will equal to value of the function. You could have done it by finding out left hand limit separately, राइट हैंड लिमिट सेपरेटली. ठीक है, तो वो हो सकता है बेटर वे ही लगे. तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं एट x इज इक्वल टू 3. तो लिमिट एज टू 0 f ऑफ 3 माइनस h. अब 3 माइनस h का मतलब क्या हो गया? 3 से लेस. ऊपर वाली डेफिनेशन चलेगी. फंक्शन में रिप्लेस x by 3 minus h. और ये कितना आ गया? h को 0 करा, 3a plus 1. राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, और फॉर राइट हैंड क्लियरली नीचे वाली डेफिनेशन. तो एक्सप्रेशन फॉर राइट हैंड लिमिट 3 प्लस h आ गया. लिमिट h टू 0, x की जगह रख दिया 3 प्लस h, एंड दिस इज इक्वल टू 3b प्लस 3. ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख दो, वो आ रहा है 3a प्लस 1. और फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिंस f इज कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, वो यहीं आ चुका है. सो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2. आप 3 कॉमन करके RHS में ले आओ, वो आपकी चॉइस है. आपसे यही तो पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन A and B. So how A and B are connected? They are connected by the following linear rule. Yes, ठीक है भानु, अब थोड़ा देख रहा हूँ क्लियर हो रहा है. चेक करिए बाकी भी सभी. सो कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 17. ये NCERT का ही है आपका 5.1 का. तो इन होमवर्क complete till first 17 questions. That's all for the day. Any doubt you can ask, or you can leave the meeting. If no doubt, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.